Hello everyone, this is Shipika. Welcome back to English class. Students, today I am going to continue this class with a new topic, that is voice. In this class we will study about what do we mean by voice, its types, and we will solve some examples which is related to the topic voice. So there are two types of voice, active voice and passive voice. So first of all we will study about what do we mean by voice. Voice होती क्या है, voice किसे कहते हैं. सबसे पहले हम वॉइस के बारे में देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को देखेंगे, कितने तरह की वॉइस होती हैं. सो लेट्स सी. What do we mean by voice? वॉइस क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम वॉइस से क्या समझते हैं. The voice is the form of verb which is used to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. Clear? Or voice refers whether the subject of the sentence performs the action or it's affected by it. Clear? What do we mean by voice? Voice से हम क्या समझते हैं? So first of all we will see the definition of voice कि voice होती क्या है. The voice is the form of verb which is used to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. It means voice is the form of a verb which is used to indicate whether the subject of the verb performs the action or receives the action. Or we can say that voice refers whether the subject of the sentence performs the action or it's affected by it. It means subject of the sentence. Sentence का जो subject है, okay? Subject of the sentence performs the action. जो subject है वो action को perform कर रहा है या फिर it's affected by it या वो इससे affected है. Okay, so I hope it's clear. Voice से हमें पता चलता है कि subject जो है sentence का वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर वो उससे अफेक्टेड है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉइस. वॉइस कितनी तरह की होती है. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ वॉइस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस. Second is
passive voice. So there are two types of voice, active voice and passive voice. First of all, we will see active voice. What do we mean by active voice? So simply we can say that in active voice, subject dominates the verb, and in passive voice, object dominates the verb. And the basic structure of it is subject plus verb plus object. This is the basic structure of active voice. And the passive voice, object plus verb plus subject. तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब होगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा. बट पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगी एंड लास्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा. और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एक्टिव वॉइस. व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस? What do we understand by active voice? Active voice active voice focuses mainly on the actions of the subject. Clear? Are the subject of the verb performs an action which the verb describes, and the object acts on. Now, active voice focuses mainly on the actions of the subject. Active voice जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करता है? Action of the subject. Subject के action पर. Actions of the subject. कि subject जो है वो क्या काम कर रहा है. और action हमें किससे पता चलती है? Verb से पता चलेगी, क्योंकि verb को ही तो बोलते हैं doing और action words. तो verb से हमें पता चलता है कि subject कौन सा action कर रहा है. तो जिन सेंटेंस में हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, द सेंटेंस विल बी इन द एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, टीचर punished the boy. Okay, the teacher punished the boy. Here the teacher is a subject, okay, and punished is a word, doing or action word. So in active voice mainly focuses the actions of the subject, कि subject कौन सा action कर रहा है, subject कौन सा काम कर रहा है. So the teacher punished the boy. teacher कौन सा काम कर रही है? punishing का काम कर रही है. okay, so here the subject is the doer of the action and the verb is punished. Therefore the sentence will be in the active voice. Let us understand better with the help of some more examples. Have a look. The crowd stopped the bus. The postman brought the letter. Let's see. Here the crowd stopped the bus. Crowd ने क्या किया? बस को रोकने का काम किया. So here the subject is the crowd. The crowd is a subject
and stopped. Stopped is a verb and rest is object. So here the crowd is a subject and stopped is a verb and the bus is a object. Okay. So the basic structure is, first of all we will see subject plus verb plus object. Clear? तो यहाँ जो क्राउड है, भीड़ है, भीड़ के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? बस को रोकने का. सो हियर द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन. एक्शन को कर रहा है कौन? सब्जेक्ट कर रहा है. सो द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट इज द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर. पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर. ओके. सो हियर द पोस्टमैन इज द सब्जेक्ट. क्लियर? एंड ब्रॉट, व्हाट इज ब्रॉट? वर्ब, doing or action word, and the letter object. So here we will see the same structure, subject plus verb plus object. The postman brought the letter. Here the postman is a subject and the postman is the door of the action. Action को करने का काम कौन कर रहा है? Subject कर रहा है. So the sentence is in a active voice. तो ये तो हो गई बात active voice की. So overall we can say that in active voice the subject is the door of the action. Action को subject ही करेगा. Okay. We will see the crowd stop the bus. Subject क्या है? The crowd. तो इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, doing और action word हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? Subject के द्वारा हो रहा है. तो ये active voice में है. Second sentence में the postman brought the letter. Letter कौन कर ला रहा है? Postman ला रहा है. So here postman is a subject and he brought the letter. It means subject is the door of the action. नाउ लेट्स सी पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है उसने क्या किया? आई क्लीन माई रूम. मैंने अपना रूम साफ किया. द क्राउड स्टॉप द बस. क्राउड ने बस को रोका. द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर. पोस्टमैन लेटर लेकर आया. ओके. सो हियर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन. ओके. एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ कहता है, एकदम स्ट्रेट ड्राइव बात करता है. मैंने ये काम किया. आई क्लीन माई रूम. द क्राउड स्टॉप द बस. भीड़ ने बस को रोका. सो एक्टिव वॉइस जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट पे फोकस करता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है. तो ये एक्टिव वॉइस जो है वो एकदम स्ट्रेट ड्राइव बात करता है. बट जब हम पैसिव वॉइस में देखते हैं तो पैसिव वॉइस जो है ना वो एक्टिव वॉइस से एकदम डिफरेंट है. वो बात को सीधा सीधा नहीं बोलता है, वो बात को घुमा करके बोलता है और बड़ा चढ़ा करके बोलता है. फॉर एग्जाम्पल, आई क्लीन द रूम. तो एक्टिव वॉइस है, उसने सीधे सीधे बता दिया आई क्लीन द रूम. बट पैसिव वॉइस क्या करेगा? वो घुमा करके बात करेगा. और वो बात करता है तो कहता है कि द रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर पनिश द बॉय. ओके. पनिश द बॉय. Here we will see the teacher is a subject, punished is a verb and the boy object. So this sentence is in the active voice. तो जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो कैसे होगा? देखिए, the boy सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा. The boy was punished by the teacher. अब यहाँ पे the boy आपका ऑब्जेक्ट हो गया. was टेंस बता रहा है. punished doing और एक्शन वर्ड and by the teacher subject. So here we will see, first of all we will write sub object, then we will write verb and after that we will use subject. So the basic structure of the passive voice is object plus verb plus subject. एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. बट जब हम पैसिव वॉइस में इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और लास्ट में सब्जेक्ट अगर होगा तो वो चला जाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस सबको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस में क्या होता है. एक्टिव वॉइस में
सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है, ओके। और एक्शन हमें पता किससे चलते हैं? वर्ब से पता चलती है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस। A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject or in passive voice the subject gets affected by the performer of the verb. It means a verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. ध्यान रखिएगा यहाँ changes है, okay? In passive voice the subject gets affected by the performer of the verb. Clear? Now let us understand better to compare these sentences. Have a look. Compare these sentences. First sentence is the teacher punished the boy. Another is the boy was punished by the teacher. By the teacher. So compare these sentences. यहाँ दो sentences दिए गए हैं, इनको आपको कंपेयर करना है, आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस में है और कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो हमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर पनिश्ड द बॉय। हियर द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। सेकेंड इज पनिश्ड। पनिश्ड क्या है? डूइंग और एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब। एंड द बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। Here the teacher is the doer of the action. Action को करने का काम कौन कर रहा है? टीचर। एंड एक्शन क्या है? डूइंग और एक्शन वर्ड क्या है? पनिश्ड। तो पनिशमेंट का काम कौन कर रहा है? टीचर कर रही है, ओके। पनिशमेंट देने का काम कौन कर रहा है? टीचर कर रही है। तो इस सेंटेंस में एक्शन को करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, द टीचर। टीचर सब्जेक्ट है और डूइंग और एक्शन वर्ड क्या है? पनिश्ड। तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर subject is the doer of the action, okay. But in the second one, the boy was punished by the teacher. Here, the boy, देखिए यहाँ तो boy object था, यहाँ boy क्या हो गया? Subject बन गया. But here the boy is not the doer of the action. The boy is the receiver of the action. Action को receive करने का काम कर रहा है, okay. एक्शन कर कौन रहा है? टीचर ही कर रहा है। बट बॉय से स्टार्ट किया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है।
तो यहाँ पे द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर क्या है? सब्जेक्ट, ओके। बट ध्यान रखिएगा द बॉय जो है वो रिसीवर है और द टीचर डोर ऑफ द एक्शन है, एंड हियर द बॉय इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? द बॉय। एक्शन को कर कौन रहा है? द टीचर। क्लियर? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई होप इट्स क्लियर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो आपका हो गया एक्टिव। एक्टिव वॉइस। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बाय द सब्जेक्ट होगा, ओके। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट, ओके। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये मेनली क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ध्यान रखिएगा, ओके। रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने का कौन कौन कर रहा है? द बॉय कर रहा है। तो आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इसे रिसीवर ऑफ द एक्शन भी कह सकते हैं, ओके। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बट हियर सब्जेक्ट इज द डोअर ऑफ द एक्शन, द सेंटेंस विल बी इन द एक्टिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट इज द receiver of the action, the sentence will be in a passive voice. Let us understand better with the help of some exercise, but before it, let's revise it one more time. Here, the teacher punished the boy. The teacher is the doer of the action. Action को करने का काम teacher कर रहा है. So here the teacher is the subject, punished verb, the boy object. The sentence will be in a active voice, not passive. Second one, the boy was क्या है? वॉज हमें टेंस बता रहा है कि किस टेंस में है, ठीक है। एंड पनिश्ड, पनिश्ड क्या है? डूइंग और एक्शन वर्ड, इट मीन्स वर्ब। एंड हियर द टीचर डोअर सब्जेक्ट, ओके। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक्शन को करने का काम सब्जेक्ट कर रहा होगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और जब एक्शन को रिसीव करने का काम सब्जेक्ट कर रहा होगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, बट ये क्या है? रिसीवर सब्जेक्ट, और द टीचर क्या है? डोअर सब्जेक्ट। होता दोनों ही सब्जेक्ट है, द बॉय भी सब्जेक्ट है, द टीचर भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ द बॉय जो है वो रिसीवर सब्जेक्ट है और द टीचर जो है वो डूअर सब्जेक्ट है। एक्शन को करने का काम बाय द टीचर कर रहा है, ठीक है, और द बॉय क्या कर रहा है? उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, ओके। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, डिफरेंस क्लियर होते जाएंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है, ओके। लेट्स सी। नाउ दीज आर सम सेंटेंसेस। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस दिए गए हैं इनमें जो वर्ब है आपको उस वर्ब को अंडरलाइन करना है, एंड राइट वेदर दे आर एक्टिव ए और पैसिव बी। और आपको लिखना है फिलिप्स में कि अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो आपको ए लिखना है और अगर पैसिव में है तो पी लिखना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज हैरी इज टॉट बाय हिज मदर। हैरी इज टॉट बाय हिज मदर। हियर द वर्ब इज टॉट, ओके। टॉट क्या है? वर्ब है, डूइंग और एक्शन वर्ड। नाउ हियर हैरी सब्जेक्ट है, ओके, बट आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव में है। तो हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस विल बी इन अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, हैरी इज टॉट बाय हिज मदर, ओके। तो यहाँ पे हैरी क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है, कर नहीं रहा है। हैरी नहीं पढ़ा रहा है मदर को, हैरी इज टॉट बाय हिज मदर। हैरी अपनी माँ के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो हैरी क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है। पढ़ा कौन रहा है? हिज मदर, ओके। सो हियर हिज मदर, ये आपका क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन। सो द सेंटेंस विल बी इन अ पैसिव वॉइस। सेकेंड सेंटेंस इज he will do the sums in an hour. He will do the sums in an hour. Here he क्या है? Receiver of the action or doer of the action? Yes, here he is the doer of the action. Action को करने का काम कौन कर रहा है? He. तो he क्या है? Subject है
कौन सा सब्जेक्ट? रिसीवर सब्जेक्ट और डूअर सब्जेक्ट? डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, तो ही आपका डूअर ऑफ द एक्शन हो गया, बट आपको अंडरलाइन क्या करना है? डूइंग और एक्शन वर्ड, इट मीन्स वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। तो वर्ब कहाँ है? डू। क्लियर? डू आपकी वर्ब है। विल जो है, विल से हमें टेंस पता चल रहा है कि किस टेंस की बात हो रही है, और ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सो हियर ही इज अ डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने का काम ही कर रहा है। तो सेंटेंस किस में है? एक्टिव में या पैसिव में? अगर सब्जेक्ट एक्शन को करने का काम कर रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन, द सेंटेंस विल बी इन अ एक्टिव वॉइस। सो दिस सेंटेंस इज इन अ एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट इज द गेट वॉज ओपन्ड बाय द गार्ड। तो यहाँ पर द गेट, गेट क्या है? डोर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने का काम कौन कर रहा है? गेट? नो, द गार्ड। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि द गेट क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव कर रहा है, खुलने का काम कौन कर रहा है? द गेट। बट खोल कौन रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? द गार्ड। एंड ओपेन्ड वर्ब, जिसे आपको अंडरलाइन करना है बुक में, बाय द गार्ड। एंड हियर द गार्ड, ये आपका डोर ऑफ द एक्शन है, इट मीन्स सब्जेक्ट है, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट। नाउ द थीफ सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सब्जेक्ट एक्शन को करने का काम कर रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव में है, और अगर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो सेंटेंस पैसिव में है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर द थीफ वॉज, वॉज क्या है? वॉज हमें टेंस बता रहा है। कॉट, डूइंग और एक्शन वर्ड क्या है? कॉट। थीफ जो था, चोर जो था, वो पकड़ा गया, बट किसने पकड़ा? नो वन। ओके, यहाँ अभी इसके आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो हम दे या समवन अपने तरफ से ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंटेंस होगा वो पैसिव में होगा। ओके, so the thief was caught. Here the thief is the receiver of the action, and where is the doer of the action? We can add someone caught the thief. अगर हम इसी सेंटेंस को एक्टिव में बोलेंगे तो क्या होगा? They caught the thief. तो वहाँ they क्या हो जाएगा? They is the doer of the action and they caught the thief. बट ये सेंटेंस किस में है? इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सेकेंड सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव में है। द थीफ वॉज कॉट। नेक्स्ट इज आई सी अ डार्क क्लाउड। आई, सो हियर आई इज द डोर ऑफ द एक्शन, नॉट रिसीवर। रिसीव थोड़ी ना कर रहा है, खुद कर रहा है। ओके, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि डोर सब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज आई इज द डोर ऑफ द एक्शन। I is the door of the action, it means I is the subject and C verb. Okay, I जो है वो subject है, C है verb, dark cloud object. So the sentence will be in a active voice. Still, the cow is loved by the children. Here, the cow is the receiver of the action. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द काउ, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। ओके, रिसीवर सब्जेक्ट है, ठीक है। लव्ड, लव्ड क्या है? आपकी वर्ब है, डूइंग और एक्शन वर्ड। बाय द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? डूअर सब्जेक्ट। ओके, बाय द चिल्ड्रन जो लिखा हुआ है, ये बाय द चिल्ड्रन क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने का काम कौन कर रहा है? द चिल्ड्रन। क्लियर? And the cow is the receiver of the action. So the sentence will be in a passive voice. Let's take some more example. The bird was killed by a cruel boy. Where is the doer of the action and where is the receiver of the action? Action को receive करने का काम कौन कर रहा है? The bird. ओके, यहाँ द बर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड किल्ड, किल्ड इज अ वर्ब, डूइंग और एक्शन वर्ड, बट हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? एक्शन को करने का काम कौन कर रहा है? बॉय। ओके, सो हियर क्रूअल बॉय इज अ सब्जेक्ट।
So the sentence will be in a passive voice. We will write P here. Next is the sum was solved by the teacher. कौन सॉल्व करने का काम कर रहा है? सम को टीचर कर रहा है। तो द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? डूअर सब्जेक्ट, ओके। एंड वॉज तो आपका टेंस बता रहा है, और सॉल्व डूइंग और एक्शन वर्ड, इट मीन्स वर्ब। एंड द सम रिसीवर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द डोर इज शट। सो द सेंटेंस विल बी इन अ पैसिव वॉइस। हियर द डोर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? रिसीवर सब्जेक्ट है। एंड शट, शट क्या है? वर्ब है। हु शट द डोर? समवन शट द डोर। तो समवन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डोर ऑफ द एक्शन, और यहाँ पर द डोर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, या आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बट कौन सा सब्जेक्ट? रिसीवर सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज आई वॉज बोल्ड आउट। हियर आई सब्जेक्ट है, वॉज आपको टेंस बता रहा है, एंड बोल्ड क्या है? वर्ड, डूइंग और एक्शन वर्ड। आई वॉज बोल्ड आउट। सो द सेंटेंस विल बी इन अ पैसिव वॉइस। Next is the gardener waters the garden every evening. So here the gardener waters the garden every evening. Who waters the garden every evening? The gardener. So here the gardener is the doer of the action. Clear? It means ये क्या है? Main subject है आपका, action subject, and waters doing or action word, verb, the garden every evening. ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो द सेंटेंस विल बी इन अ एक्टिव वॉइस, बिकॉज हियर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन को करने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, खुद कर रहा है एक्शन को। द गार्डनर वाटर्स द गार्डन एवरी इवनिंग। हर शाम को गार्डन में पानी देने का काम कौन कर रहा है? द गार्डनर, ओके। तो ये यहाँ मेन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हियर द गार्डनर इज द डोर ऑफ द एक्शन, नॉट रिसीवर ऑफ द एक्शन। सो द सेंटेंस विल बी इन अ एक्टिव वॉइस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बट इस चार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार टेंस को देखते हैं कि टेंस टोटल कितने होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। तो जो 12 टेंस होते हैं सबका एक्टिव में पैसिव नहीं होता है, ओके। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी वर्ब में हम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो टेंस दिए हुए हैं ये वो टेंस हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, एक्टिव से पैसिव होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट चेंज हो जाएगा। बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो ये तो हमारे टेंस हो गए जो चेंज हो सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जब हम उन्हें पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस में डू या डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज विल बी चेंज इनटू इज एम आर, ओके। अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो उसमें हम इज एम आर यूज करेंगे, डू या डज के को रिप्लेस करके, ओके। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज होता है, पता ही है, बेस प्लस आई एन जी। तो अब हम इसका अगर पैसिव में चेंज करेंगे इसे तो क्या होगा? इज एम आर ही होगा प्लस बीइंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव यूज होगा, है ना, थर्ड फॉर्म। सो हैज एंड हैव विल बी चेंज इनटू हैज, हैव प्लस बीइंग। नेक्स्ट इज डिड। अगर डिड है हेल्पिंग वर्ब तो डिड फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है तो डिड चेंज होगी किसमें? वॉज या वर में। नेक्स्ट इज वॉज, वर और बेस प्लस आईएनजी अगर आ रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर वर्ब यूज हुई है मीन्स वॉज या वर के साथ बेस प्लस आईएनजी यूज हुआ है तो वो पैसिव बनाने में क्या चेंज हो जाएगा? वॉज या वर में, ठीक है, वॉज वर के साथ बीइंग यूज होगा। नेक्स्ट इज हैड। इट मीन्स हैड पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैड को चेंज करके हैड बीइंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शैल और विल। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर
इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ओके, तो सिंपल फ्यूचर का अगर टेंस है और हेल्पिंग वर्ब शैल या विल यूज हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो हम पैसिव बनाते टाइम क्या करेंगे, शैल विल के साथ बी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, इट मीन्स शैल विल के साथ हैव यूज हुआ है, शैल विल के साथ हैव बीन ऐड करेंगे। तो बेटा ये चेंजेस हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में और पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाने में, सेम चेंजेस हो गए। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है इज एम आर है तो वो डू डज में चेंज हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग है तो वो इज एम आर प्लस बी प्लस आई एन जी बेस फॉर्म प्लस आई एन जी में होगा। हैज़ हैव प्लस बीन है तो हैज़ या हैव यूज होगी। अगर वॉज वर है तो डिड उसकी जगह हो जाएगा, वॉज वर के साथ बीइंग है तो वॉज वर के साथ आई एन जी फॉर्म यूज हो जाएगी बेस के साथ। हैड बीन है तो हैड यूज होगा। शैल विल बी है तो सिर्फ शैल या विल यूज होगा। शैल विल के साथ हैव बीन यूज होगा, तो अगर हम एक्टिव में बनाएंगे इस सेंटेंस को तो शैल विल के साथ हैव यूज करेंगे, बी हटा देंगे। ठीक है, तो ये तो चेंजेस है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने का। ओके, बेसिकली हमें वर्ब को ही चेंज करना होता है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजेस आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन है और एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है अगर वो पहले लिख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है, तो वो सेंटेंस किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। और अगर डूअर ऑफ द एक्शन पहले लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस एक्टिव में है। ठीक है, और इसके साथ जो सबसे सिंपल सी चीज़ है, जो मेन वर्ब आपकी आएगी, मेन वर्ब मीन्स डूइंग और एक्शन वर्ब। ठीक है, स्टॉप्ड, तो अगर स्टॉप्ड है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगी। सो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट इन योर फेयर कॉपी एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी confusion regarding the chart, regarding the changes of the verbs in active or passive, you can ask me without any hesitation. In the following sentences, change the verbs in the active voice into the passive and the verbs in the passive voice into the active. ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से जो वर्ब एक्टिव वॉइस की है उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और जो पैसिव वॉइस में है उसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दैट्स इट। तो हमें पता ही है डिफरेंस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से सेंटेंस को हम एक्टिव बनाते हैं और किस तरह से हम सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, पहले तो आप ये देखेंगे कि सेंटेंस है किस वॉइस में, चेंज तभी तो करोगे। फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट किल्ड अ माउस। हियर द कैट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन, तो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब आपको इसको क्या करना है, पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, उसके बाद वर्ब ले आएंगे, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, डूअर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीवर सब्जेक्ट को रखेंगे। तो रिसीवर सब्जेक्ट कौन सी होगी इसमें से, द कैट किल्ड अ माउस, माउस। ओके, तो सो हियर अ माउस, अ माउस was killed। हमें पता है कि जो भी मेन वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगी। तो किल्ड है तो यहाँ किल्ड मेन वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म में ही होगी, किल्ड ही होगी। यहाँ was killed लिखा हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम उसी में चेंज करेंगे। सो अ माउस was killed by the cat। ओके, तो यहाँ पर अ माउस जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर हम रिसीवर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे क्योंकि हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं और बाय ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय वॉज बीटन बाय अ डॉग। तो मेन वर्ब क्या है, बीटन। सो हियर द बॉय इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है, बट एक्शन कर कौन रहा है, द डॉग। डॉग ही काटने का काम कर रहा है, बॉय नहीं। ओके, सो हियर द बॉय इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड अ डॉग इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। दोनों सब्जेक्ट हैं बट यहाँ पर डूअर सब्जेक्ट है और यहाँ रिसीवर सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे होता है, द बॉय वॉज बीटन बाय अ डॉग। सो हियर अ डॉग बिट the boy, was bitten change into bit. Next is the window was broken by Kareem. So here Kareem क्या है, doer of the action और the window receiver. Okay, so the sentence will be in a passive voice. So it means we will change into active
तो एक्टिव में क्या होगा, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय करीम, हियर करीम ब्रोकन वर्ब थी, करीम वॉज ब्रोकन, इट मीन्स करीम broke the window. यहाँ was broken verb है, यहाँ पे was beaten verb है, ओके यहाँ पे verb killed है. Let's see next sentence is a cruel boy killed the bird. Here killed is the main verb, doing or action word. A cruel boy killed the boy. Here the cruel boy क्या है, doer of the action. It means the sentence will be in a active voice, so we will change into passive. So in passive we will use firstly the bird killed है, was killed चेंज नहीं होगा क्योंकि हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही मेन वर्ब की यूज करेंगे, तो killed है तो killed एज इट इज killed ही लिखेंगे, बट क्या होगा, was killed, द बर्ड was killed by a cruel boy. Next is the snake frightened the child. First of all, where is a main verb? Frightened. ये आपकी main verb है. The snake frightened the child. Here the snake is a doer of the action. Okay? The sentence will be in a active voice. So active voice है तो आपको change किस में करना है? Passive में change करना है. तो passive में change करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम object से start करेंगे. Object ही यहाँ पर subject बन जाएगा. Receiver object. Okay? So the child frightened, we will use was frightened. The child was frightened by the snake. तो यहाँ पे क्या होगा, by the snake. हम by ऐड करेंगे, ओके? So in active we will write the snake frightened the child, and in passive we will use the child was frightened by the snake. Next sentence is the police arrested the thief. Here arrested is a doing or action word. It means main verb is arrested. Okay? ये आपकी main verb होगी arrested. Who arrested the thief? The police. तो police क्या है? Subject है, main subject है, doer of the action. Action को करने का काम, arrest करने का काम कौन कर रहा है? The police. So here when we change into passive, the sentence will be in an active voice. When we change into passive, we will use firstly the thief. Here we will use, सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन से हम स्टार्ट कर देते हैं पैसिव में, डोर ऑफ द एक्शन को पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह चेंज कर देंगे इसको. तो थीफ अरेस्टेड है तो क्या हो जाएगा, अरेस्टेड को अरेस्टेड ही लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही यूज होगी. वॉज अरेस्टेड. ओके, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. तो यहाँ जो डोर ऑफ द एक्शन है उसको हम लास्ट में ले जाएंगे बाय ऐड करके, बाय द पुलिस. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. तो पनिशमेंट के सेंटेंस तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा हो गए पनिशमेंट के सेंटेंस. अब थोड़ा प्रेज्ड के भी देख लेते हैं. सो ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. सो ही प्रेज्ड इज द मेन वर्ब, डूइंग आवर एक्शन वर्ड. प्रेज्ड इज द मेन वर्ब. हियर द टीचर कहाँ यूज हुआ है, एकदम लास्ट में यूज हुआ है, यानी कि जो डोअर ऑफ द एक्शन है वो एकदम लास्ट में यूज हुआ है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है. इट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट हुआ है. तो सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है. तो अब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे. सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, डोअर ऑफ द एक्शन. तो सबसे पहले लिखेंगे, तो कौन है डोअर ऑफ द एक्शन, द टीचर. सो हियर वी विल यूज द टीचर. द टीचर. नेक्स्ट इज प्रेज्ड. वर्ब आएगी तो वर्ब प्रेज्ड है तो क्या यूज होगी, प्रेज्ड. द टीचर
praised, अब he है, he का क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, him, okay? So the teacher praised him. He will be changed into him. So the sentence is the teacher praised him in active voice, and when we are using in passive we will use he was praised by the teacher. So these are some examples of active voice to passive voice and passive voice to active voice. I hope it's clear. Okay students, it's over for today. I hope you enjoyed the class. If you have any query, any confusion regarding the topic and changes into active and passive voice, especially I am talking about the verb changes, okay? So if you have any query, any doubt, you can ask me without any hesitation. Next time we will meet with a new video very soon. Till then, keep studying, stay at home and be safe. Goodbye.